हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास के लिए टॉपिक वाइज एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो इसमें आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। सो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो एज यूजुअल एमसीक्यू। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू। नाउ सी हियर, द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर generations to meet their own need is known as. So this is the directly definition which is from the textbook and it is the definition of the sustainable development. ठीक है, ये तो हो गया first MCQ. Second one, which of the following is gamma isomer of BHC? What is mean by that BHC? BHC is nothing but the benzene hexachloride. What is the structure? Structure of this one is, this is the benzene hexachloride. So these are the 6 chlorine. So this is the structure of benzene hexachloride. It is used as a insecticide. Earlier that DDT was used as a insecticide, but because of harmful effect of that DDT on the living things, it is deleted, or we can say that it is not used nowadays. But nowadays that BSC is used as a insecticide. Now if we consider question is the gamma isomer of the BSC. Gamma isomer of the BSC is called as a lindane, or it is also called as a gamexene. It is called as a gamexene also. So out of these two names, if we consider what is given in the option, given is the lindane. So option B is the correct answer. Third MCQ, the prefix nano comes from, in that nano chemistry, nano word is there. So that nano word, it is from the first French word meaning billion, no. Greek word meaning dwarf, yes, that is the correct option. So we have completed here first 3 objective. Now we'll discuss the remaining 2 objective. Objective is, which of the following information is given by FTIR technique? If we consider green chemistry and nano chemistry topic, in that one chart is given on that page, or we can say that in that chart they have given the techniques, which instrument to be used and what is the use of that technique. So here if we consider this technique FTIR, that FTIR, firstly I will tell you long form, Fourier transfer infrared technique. Okay, means Fourier transfer infrared spectroscopy. This is the technique name. What is the use of this technique? This technique is useful for the absorption of the functional groups. Remaining 3 options are also given. I will tell you the which techniques we have to use for their detection. Second option is given, that is the particle size. For the particle size, there are the 2 techniques are there. One is the XRD, X-ray diffraction. Second one, if we consider X-ray diffractometer. If we consider second technique, that is the TEM, transmission electron microscopy, this technique is used. Next option, confirmation of formation of a nanoparticles, means nanoparticles फॉर्म हुए कि नहीं वो कंसिडर करने के लिए और वो कंफर्म करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए टेक्निक है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. नेक्स्ट वन, ऑप्शन डी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर. For this crystal structure detection, we have to use the technique that is the XRD, X-ray diffractometer or X-ray diffraction method is there. Now next objective, the concept of green chemistry was coined by, means firstly who has given that principle, this technique, this information about the green chemistry. For that concept, 4 option or 4 scientist name are given. So we have to select the correct one. Now see first option, Born Haber. As we know that Haber's process is there, which is used for the manufacturing of the ammonia. So this is not the answer. Nario Taniguchi. This is the name of the scientist who has firstly defined nanotechnology. So this is also not the answer. Richard Feynman. This is related to the quantum. So this is also not correct one. If we consider Paul T. Anastas, this is the correct option. So here we have successfully completed question number 1, which is of the nanochemistry, or we can say that green chemistry also. For the next question, we will start with the question number 2. That second question is answer the following. In that, write the formula to calculate percent atom economy. और एक बात, अगर मेरा टीचिंग मेथड आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और हाँ,
अच्छे से समझ रहा है तो लाइक भी कीजिए और कमेंट बहुत अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एटम इकोनॉमी रिलेटेड। अगर हम कंसिडर करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में जो कुछ भी 12 प्रिंसिपल है उसमें से ही एक प्रिंसिपल है एटम इकोनॉमी। एग्जैक्टली एटम इकोनॉमी मतलब क्या होता है? देखो, जब कभी भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होनी होती है या फिर रिएक्शन करनी होती है तो वहां पे हमें लेना पड़ता है एक रिएक्टेंट, और उस पर रिएक्शन होने के बाद हीटिंग हो, प्रेशर हो या फिर सनलाइट में रख रहे हो, कोई भी हो, पर उसके कंडीशन के बाद रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जो कुछ भी रिएक्टेंट, इसमें जो कुछ भी एटम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होने चाहिए प्रोडक्ट में, मतलब मेन प्रोडक्ट में, ठीक है। क्योंकि हर बार देखो कुछ भी रिएक्शन होती है, जैसे कि देखो A इट गिव्स B प्लस A, तो यहाँ पे A से मेन प्रोडक्ट क्या है? B, और ये जो A मिल रहा है वो क्या है? तो साइड प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है। तो हमेशा से एटम इकोनॉमी मतलब ग्रीन केमिस्ट्री में से जो वो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट के जो एटम्स है वो कन्वर्ट होने चाहिए डिजायरेबल प्रोडक्ट में, रादर दैन दैट शुड बी वो जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है या फिर अनवांटेड वेस्ट मटेरियल मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? तो बहुत स्मॉल परसेंटेज में होना चाहिए। तो वहां पे कैसे निकाला जा सकता है परसेंट एटम इकोनॉमी? अगर हम कंसिडर करते हैं उसका फॉर्मूला परसेंट एटम इकोनॉमी, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंट एटम इकोनॉमी इज द रेशियो ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ desired product, formula weight of desired product into परसेंटेज है यहाँ पे, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या करना है? जो कुछ भी मतलब A प्लस B दो रिएक्टेंट लिए हो या फिर एक ही रिएक्टेंट हो, तो अगर दो लिए हैं तो उनकी सम लेनी है, और एक ही लेना है तो उसका भी फॉर्मूला वेट लेना है। तो यहाँ पे मैं दो कंसिडर करके लिख देती हूँ, सम ऑफ all the reactants, sum of all the reactants or starting materials used in the reaction. So this is the formula to calculate the percent atom economy. इस क्वेश्चन के लिए हमें इतना ही आंसर लिखना है, मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे फिर से बोल रही, परसेंट एटम इकोनॉमी इज द वन प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री इन दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द डिजायरेबल product instead of waste material. This is the first question answer. Second one, name the gamma isomer of BSC. In objective also there was the question related to the gamma isomer of BSC. In that, which points we have to write? Firstly, I will tell you gamma isomer of BSC is called as A, or it is the linden or gamexene. It is the linden or gamexene. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी। बीएससी इज नथिंग बट द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इट इज द बेंजीन हेक्साक्लोराइड which is used as a insecticide, but earlier DDT was used as a insecticide, but because of its side effect, or we can say that harmful effect to the living thing, it is not in a use. So nowadays that gamma isomer of BSC, that is the linden or gamexene, are used as a insecticide. So only that much answer is sufficient for this second question. Third question, Ridhima wants to detect the structure of surface of material. Name the technique she has to use. मतलब यहाँ पे रिधिमा को क्या लगता है, जो कुछ भी नैनो पार्टिकल या फिर मटेरियल मिला है उसका सरफेस का स्ट्रक्चर उसको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस ऑफ मटेरियल डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट उसने यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये वाला टेक्निक उसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो रिधिमा को लग रहा है कि उसने डिटेक्ट करना है कि सरफेस ऑफ द मटेरियल। अगर उसको लगेगा कि हाँ कंफर्म हुआ है कि मतलब जो कुछ भी नैनो पार्टिकल्स फॉर्म हुए कि नहीं वो कंफर्म करना है, तो उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर उसको लगता है वहां पे कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, तो फिर उसके लिए कौन सा
इंस्ट्रूमेंट या फिर टेक्निक यूज करना पड़ेगा वो है FTIR। ऐसे ही पार्टिकल साइज हो या फिर हमें वहां पे डिटेक्ट करना है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो हमें यूज करना पड़ेगा XRD। ऐसे बहुत सारे, मतलब एक टेबल है, मैंने प्रीवियसली भी बोल दिया, एक टेबल है उसमें ये सब दिया है, तो आपको वो टेबल अच्छे से ध्यान में रखना है, कौन सा टेक्निक है, उसका लॉन्ग फॉर्म और उसका यूज क्या है। तो ऐसे करके रिधिमा ने तो कंप्लीट कर लिया डिटेक्शन ऑफ द सरफेस ऑफ मटेरियल। उसके लिए टेक्निक जो यूज करना है वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम बोलते हैं SEM। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच नैनो मटेरियल इज यूज्ड फॉर द टायर्स ऑफ कार टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ टायर्स। मतलब कौन सा ऐसा नैनो पार्टिकल है जिसको हम यूज करते हैं टायर्स के लिए, तो उस टायर की क्या होगी, लाइफ जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो उसके लिए हमारा आंसर रहेगा कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक नैनो पार्टिकल्स अगर हम यूज करते हैं तो जो कुछ भी लाइफ है टायर्स की वो क्या हो जाएगी, तो बढ़ जाएगी। ऐसे ही बोल सकती हूँ, अगर हम करते हैं डिस्कस पुरातन वास्तु, जहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग है, बहुत सारे अच्छे से ड्राइंग्स है, उसमें जो कुछ भी कलर आते हैं, जैसे कि एक कलर लेते हैं हम रूबी रेड कलर, तो उसमें जो कुछ भी वो रेड कलर है वो क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ए गोल्ड और सिल्वर नैनो पार्टिकल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको पूछा है कि कैसे इंक्रीज की जाएगी टायर की लाइफ, तो वैसे भी पूछ सकते हैं कि एंशिएंट पेंटिंग में क्या कौन से नैनो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिल्वर और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द साइंटिस्ट who discovered STM in 1980। सो यहाँ पे STM मतलब क्या है, अगर हम डिस्कस करते हैं STM मतलब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। तो इस जो कुछ भी टेक्निक है इसका फर्स्टली इंट्रोड्यूस किसने किया, तो वो साइंटिस्ट का नाम है बेनिक एंड Heinrich Roder. So this is the name of the scientist who has firstly discovered this STM टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे तो हो गया ये। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि आपको सबको पता है। क्वेश्चन क्या है देखो, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर। यहाँ पे नैनोमीटर का पूछा है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना होता है, 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, और 1 पिकोमीटर मतलब कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है मीटर, तो वो हो जाता है 10⁻⁹ मीटर, और अगर सेंटीमीटर में कंसीडर करते वही हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये हो गया 1 नैनोमीटर। व्हाट अबाउट द 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हाँ, फिर से एक बार बोल देती हूँ, टीचिंग मेथड समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।